it's been kind of a tradition that after every season of Bigg Boss Marathi, I usually like to host a party so that we all can come together and forget all the negativities in the Bigg Boss and remember all the positive things. So after the first season we had a party, after the second season we had another party. Third season ke baad, obviously because of the pandemic, it was getting a little difficult to organize this event. But finally, this is the right time and all three seasons are coming together. इतना ही नहीं तो जो हिंदी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हिंदी बिग बॉस में, थोड़े लोग बाहर आज काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे मुंबई में हैं, तो आज ज़रूर वो भी आएंगे. दे वुड लाइक, आई मीन, सो इट्स नॉट ओनली मराठी, it is for all my friends, everybody. Actually, in fact, everybody who's been a part of Bigg Boss is welcome to my party. I would love to have them all because this entire journey has really made us rediscover a lot of things about ourselves. And it is just a reminder for us कि वो जो discovery हुई है, जो rediscovery हुई है, it's kind of a remembrance, or you can call it a reminder for us to still be grounded and connected, because Bigg Boss is such a platform कि किसी को भी इधर से वो इधर ज़मीन पे ला देता है और वो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है. And this is somewhere it is for us to be together and be connected to each other and be grounded as well. Can you see, can we see you in the Hindi Bigg Boss? No, I think, you know what, I've already done the Marathi Bigg Boss, so I'm pretty happy with this entire journey. I think Hindi again, I don't think so, but I think I'm good with this one journey. It was really a beautiful journey for me, तो बहुत अच्छा लग रहा है. And first of all, yes, I want to definitely thank BPM for being the location partner and hosting this event with me. So thank you so much, BPM. And also I would like to thank Picture and Craft, my very good best buddy out here. Come here. Achha, she doesn't want to come, she's shying away. Parul is here, right here. Thank you so much, Parul, because without you this event was simply not possible. And we also have very important partners this time. We have Scribble and Pop events, and I would like you to meet my friend. Come. So I have my friend Kunjal with me here. And the entire she has curated the entire decor of this place, which is very amazing. I think it's beautiful and it's very classy. I loved it. So I think she's been an important part of my this party today, this evening as well. Thank you so much. Thank you so How was much. your experience? Was It's good? great. Okay, the evening is still about to start. I would definitely ask her that probably by the end of the evening. Yes, sure. So Thank you. Thank you. की बात की जाए तो हिंदी और मराठी बोथ हैव बीन सो सॉल्ट आफ्टर. आपके ओपिनियन में जो अभी करंट हिंदी सीजन के बिग बॉस कंटेस्टेंट है, आपका कौन फेवरेट है? Oh my God, कौन favorite रहा? Of course, I mean, see, everybody has their pluses and minuses. कोई चीज़ें किसी में अच्छी लगती है, कोई चीज़ें कोई में खटक जाती है. But I think हिंदी की बात करें तो obviously we had very good players this time. It's very important how you look at the game. कि आप इंसान अच्छा ढूंढ रहे हो या एक प्लेयर अच्छा ढूंढ रहे हो. Everybody has different mindsets to it. So I will not say take a particular name. अगर कोई मुझे इंसान अच्छा लगा है, as a human being अच्छा लगा है, किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, किसी का बर्ताव अच्छा लगा है, so it is very different. I will not like to name one person because everybody is very different in their own way and everybody is very special, and that's the reason they are in Bigg Boss. It's not an easy game. बहुत आसान नहीं है यहाँ रहना, वो भी इतने दिन. तो everybody is unique in its own way. Thank you. किसी के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है और ऊपर से उसको करके दिखाना, इट्स नेक्स्ट लेवल. सो आई थिंक हर साल वो पार्टी रखती है, जैसे सेकंड सीज़न के लिए भी रखी थी. अब ये थर्ड सीज़न है, तो थर्ड सीज़न में तीनों सीज़न के लोग हैं. हम भी काफ़ी कम मिले हैं. मैं तो थर्ड सीज़न में गई थी अंदर, बट ये जो वो मौका देती है एक दूसरे को पहचानने का, घुल मिलने का, आई थिंक ओनली स्मिता कैन डू इट बिकॉज शी इज़ अ लवली पर्सन. आई जस्ट लव हर. कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? यस ऑफ कोर्स, माय सीज़न वाज द फर्स्ट सीज़न, पहला सीज़न था. और इस सीज़न में अगर मुझे कुछ मिला है तो ऐसे दो दोस्त कमाल के मिले जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे. उसमें से एक है स्मिता ऑफ कोर्स और दूसरा आस्था. व्हाट डू यू थिंक बिग बॉस मराठी और हिंदी बिग बॉस में क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज? गेम इज़ द सेम ओनली. आई डोंट थिंक सो गेम इज़ डिफरेंट. दोनों जगह गेम सेम ही है, खाली लोगों का तरीका उसे खेलने का अलग है. क्योंकि यहाँ महाराष्ट्रियंस होते हैं तो मराठी लोग होते हैं, तो मराठी
होता है, अब हर किसी के इस मराठी लोगों के सोचने का तरीका अलग है। वहाँ मतलब नॉर्थ से भी होते हैं, साउथ से भी होते हैं, गुजराती तो हर इंसान अलग अलग प्रांतों से आता है, तो सोचने का अलग, तो दे रिएक्ट डिफरेंटली। सो इसलिए वो गेम बहुत अलग दिखता है। क्या बिग बॉस हिंदी एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं मतलब, और क्या हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं, बिग बॉस हिंदी की? अभी ऑलरेडी जब मैं गेम जानती हूँ, मैं गेम समझती हूँ, मुझे पता है गेम कैसे खेलना, वो बेवकूफ़ थोड़े मुझे वापस बुलाएंगे। सी यू, बाय। एक्चुअली बिग बॉस सीज़न 3 में हम थे और 3 के जो कंटेस्टेंट हैं हम 2-3 बार मिले हैं, लेकिन जो फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न है, उनको सिर्फ हमने टीवी पे देखा है या फिर हम कभी मतलब मिले नहीं है। तो ये रीयूनियन जो है वो बहुत अच्छा है और हमें भी इनवाइट किया, तो स्मिता जी ने जो एक अच्छा गेट टुगेदर रखा है, तो हम बहुत खुश हैं कि हम सभी इकट्ठा होंगे और आगे भी जो है वो जो मिलकर आगे कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं भी अभी सीज़न 3 में थी, थोड़ा लाउड नहीं ओके ना, सीज़न 3 में थी और फर्स्ट और सेकंड सीज़न के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं सेम लाइन में काम करती हूँ, ये तो बाहर से हम लोग तो मिलते रहते थे, हम लोगों की बातें भी होती थी। लेकिन ये था कि थर्ड सीज़न में जब मैं गई और मैंने देखा कि एक्टर्स बहुत कम हैं और कोई मॉडल है, कोई मतलब जैसे जय था, विशाल था, तो बाहर से आए हुए मुझे सब नए थे मेरे लिए। लेकिन ये जो मेरे पुराने जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था अंदर कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन मज़ा आया। और स्मिता ने ये जो पार्टी आज अरेंज की है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस मौके पे आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड सीज़न के सभी लोगों को मिल सकते हैं और हम गेट टुगेदर कर सकते हैं। ओके मैम, सोशल की बात करें, सोशल में काम काफ़ी मंदिरों के लिए काफ़ी मदद कर, उसके विचार किस तरह से विचार आते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ और जिस तरह से काम किया है इसीलिए जो देश में एक एग्रेसिवली में काम करती हूँ, इसीलिए बिग बॉस में भी बुलाया गया। और मुझे एक अच्छा लगा कि ये सब जो है वो एक्टर एक्ट्रेस इसमें थे, लेकिन इस बार सोशल वर्कर भी उन्होंने बुलाया था। और जब सीज़न 3 में हम गए तो बहुत अच्छा थीम भी उन्होंने किया था, सब महिलाओं को लेकर थीम उन्होंने की, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत लोग कहते थे कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो पता चला कि ये पूरा रियलिटी शो है, आगे कुछ होता है ये हमें भी नहीं पता चलता है और कुछ हम वहाँ पे छिपा भी नहीं सकते, हम जैसे हैं वैसे वहाँ पे दिखते हैं। और वो अच्छा लगा कि लोगों के यहाँ पे हम 24/7 हम जैसे हैं वैसे पहुँचे, इसलिए वो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म था तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Most meeting after 2 years, after lockdown, after corona, after everything, so we are so much excited, and you know, all the memories are coming up in my mind, that what we were enjoying and what we were suffering from, and I'm eagerly waiting for next season. So let's see, let's hope for the best. Big Boss memory would you like to share? Actually there are so many memories, but actually there are so many tasks, you know, but क्या share करूँ मैं? Actually there is so much of mess in my mind, but every memory of Big Boss was very wonderful. We learned something, and we experienced something new, so everything was so special. Whether it was negative, it was just there to teach us something, and whether it was positive, so it was just to enjoy over there. So everything is so special. Okay, so if you want to pick any difference between Big Boss Hindi and Big Boss Maldives, what it is? Apart from language. There are actually so many differences. If you observe that Marathi crowd or Marathi Big Boss was quite aggressive, if you can understand. Matlab there was in Hindi, you know, even if someone touches like this, so they call it a Big Boss, ये violence कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं. पर मराठी में it was like so much of aggressiveness was there, and no one was ready to cool down or to calm down, and somewhere this aggressiveness was necessary also, and that was the thing which was there to, you know,
differentiate the Hindi Big Boss and Marathi Big Boss. It was good also, it was bad also, but that was the difference. Okay, so now you are part of Big Boss Marathi. So if you get a chance for the Big Boss in this, so you'll go. I'll have to think a lot about it, you know, because when I came out of the Big Boss, now the reason was not that audience disliked me. Actually, my hand was fractured because of the violence happened in the house, and that's why I was so scared that I didn't want to go back. So if I'm sure that no kind of violence is going to happen, then I could think about it. But if there is such kind of crazy aggressiveness, then I don't think so I will take a chance. Okay, so apart from the Big Boss, is there any reality Apart from that, Khatron Ke Khiladi is very nice show actually. It is that show is good for aggressiveness because show is not for that physical violence. So yes, for something different, if I want to explore, then Khatron Ke Khiladi would be the nice show. Thank you so much. Thank you. Thank you. कि जो भी कंटेस्टेंट थे तो मराठी वाले ना थोड़ा ज़्यादा नखरा करते थे और मुझे ज़्यादा प्यार जो मिला वो हिंदी में मिला, जो कि एज ए कॉन्टेस्टेंट। जैसे भी राखी आई तो उसने मुझे दादा बोल दिया, तो करण ने भी दादा बोल दिया, जो भी लड़कियां थी अंदर और जो भी जेंट्स थे वो सब मुझे दादा ही बुलाते थे। इधर नखरे बहुत ज़्यादा करते थे मराठी वाले। हाँ, उनको पता चल गया है कि अभी मराठी का स्टार कौन है, मराठी इंडस्ट्री में स्टार कौन है। हिंदी में बात करूँ तो करण से की बातें हुई बिग बॉस सीजन के बाद, तेजस्वी जीती शो। नहीं, मुझे निशांत ने कॉल किया था कि शमिता का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मैं सांगली में था, तो सांगली से मुंबई में आना और 1-2-4 घंटे में नहीं हो सकता था। और एक रिलेशन जो अच्छे बने हैं, क्योंकि शमिता के और मेरे कुछ दंगे भी हो गए थे ना, तो मैं बोला कि नहीं जाना है मुझे, चलो। लेकिन सुनीता जो है ना अपनी, ये पहली लेडी है जिसको पता था कि मैं बिग बॉस मराठी में आ रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्टार बनोगे और गुण खिलाओगे, और मैंने खिला दिए। प्रतीक सेकेंड आए, तेजस्वी पहली आई, काफ़ी बातें हुई कि प्रतीक जीतने चाहिए थे उसको। आपको किस तरह से डिजर्विंग लगती है तेजस्वी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो बायस्ड रिजल्ट है उसका। जब मैं बोला कि वो शमिता को जिताना चाहते थे, मैंने बोला, आपको पता होगा कि अपना स्टेट मीडिया जो है, जो भी अपने चैनल है उस पर मैंने बात की थी, तो जैसे ही मैंने मेरे दिल खोल के बातें की कि क्या उधर पंगा हुआ था सलमान का और मेरा, वो ये सब, तो उन्होंने ये बायस में कर दिया कि महाराष्ट्र की लड़की जीते। पहले तो वो शमिता को जिताना चाहते थे, वो मुझे पता है। हाँ, और उसने जाके प्रतीक को भी नहीं जिताया, करण को भी नहीं जिताया। अगर देखा जाए तो करण भी डिजर्विंग था और प्रतीक भी डिजर्विंग था, क्योंकि पूरे 100 दिन उन्होंने निकाले थे अच्छे से, और एज ए इंसान वो बहुत अच्छे हैं दोनों भी, करण और ये प्रतीक। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई आपकी हिंदी बिग बॉस की इलेक्शन के बाद। अब किस तरह का सिचुएशन है, क्या कुछ नहीं, उसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं रहता कि भाई आप कोई क्रिया करोगे, आप कुछ बोलोगे। अगर आप मुझे दादा बोलते हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर मुझे आप तिरछी नज़रों से देखते हो तो मैं आऊँगा फिर। वैसे ही है, कुछ ये नहीं होता कि रिएक्शन मैंने दी थी, सलमान का जो मैटर था उस पर मैंने रिएक्शन दी। दादा, क्या आप फिर से बिग बॉस हिंदी में देख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बिग बॉस हिंदी फिर से आने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडोमोल चाहता है, इंडोमोल ने मुझे मराठी से लेके हिंदी तक पहुंचा दिया, तो बुला लेंगे, वो शायद बुला लेंगे, क्योंकि ये तो हर वक्त होता रहता है। क्योंकि एक्शन किया था सलमान जी ने, तो उसके बाद में मैंने रिएक्शन दिया, और मैं रिएक्शन कभी भी बदलता नहीं हूँ और ना कभी बदलूँगा। पर अगर आप फिर से हिंदी बिग बॉस का है, कोच तो सेम ही रहने वाले हैं, सलमान सर, तो क्या आप फिर से अगर जाओगे तो सलमान सर भी आपको फेस करना पड़ेगा? नहीं करेंगे ना, ये क्या है। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, तो इंडस्ट्री में ही रहना है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी उसका हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा वो कवर करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे। करूँगा, हिंदी फिल्म करूँगा मैं, लेकिन आज थोड़ा सा डर गया हूँ मैं। सुबह आपको पता होगा कि सब चैनल पे एक न्यूज़ चल रही है कि भाई ये 34 लाख आने वाली है, ये वेव आने वाली है 34, तो थोड़ा सा सहम गया हूँ मैं। वो दिखाई भी देता है मुझे कि क्या भाई ये लोग हमको मरवा देंगे क्या,
ये जो हमारी जो कि फर्स्ट से लेके हाथ तक जो लोग रहते हैं यहाँ मर जाएंगे यार, काम नहीं मिलेगा किसी को। पता है 2 साल से हम क्वारंटाइन थे। अगर ये महाराष्ट्र शासन या ये कोई अपना पूरा जो केंद्र सरकार जो है अगर ये वियोग का नाटक करेगा ना तो सब मर जाएंगे यार, खाना पीना नहीं मिलेगा किसी को। तो अभी के अभी इनको God, I get very nostalgic because I was in Big Boss season 3, which was in the Hindi Big Boss, not the Marathi one, and it's very close to my heart because I was just a designer. People knew me as a good designer, but I became a household name, and it completely changed my life. I became like so famous that till today people remember me from Big Boss. I think so. It's a beautiful platform where people emote their emotions. It's a show of love. It's a show of hatred. So I enjoyed, and all the contestants of my season Big Boss, they're all of my friends. Cash is here. Cash was in season 1, I think so. She was in season 1, and I think so. It's a great show. How do you see a reality show? Because there are reality show Big Boss Marathi and Hindi. See, I know Tutti Putti Marathi, because I believe that Kishori Sane was there in this in Marathi, because I saw a couple of episodes, but I think so it's very beautiful platform that every regional think they are having a Big Boss of every region. So I think it's very good for the channel. Basically, निशा जी की मैं बात करूँ, काफी एक अच्छा एग्जाम्पल लॉकअप में उन्होंने सेट किया, बीइंग अ ग्रेट। इस तरह का गेम आपको लगा लॉकअप? निशा मेरी फैमिली है, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड मैं उसको जानता हूँ, उसने बहुत डिग्निफाइड से खेला है, ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर द वे शी प्ले, एंड भगवान करे शी शुड बी ऑलवेज हैप्पी। आई ओनली कैन विश हर वेरी गुड लक। इन अप्स एंड डाउन यू वर ऑलवेज देयर, काफी कुछ बातें हुई, उस सारी चर्चाओं में कुछ आप कहना चाहोगे? नहीं, ये मेरा पारिवारिक मैटर है, मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं बात करूँगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच। Well, you guys don't know, but I'm a very big fan of Big Boss Marathi also. I've always watched it and always tweeted about it, and I really like Smita. Smita was the most beautiful, most classy, and well-dressed person of season 1. आणि मला नाही वाटत की तुझ्यापेक्षा जास्ती कोणी चांगले कपडे घातलेच असणार, सेकंड किंवा थर्ड. थँक्यू सो मच. छान कपडे घातले, व्हेरी क्लासी. थँक्यू, व्हेरी नाईस. Okay, so apart from language, what is the difference between you see the Big Boss Hindi and Marathi? I see no difference. I think both of them are really good. They are both equal. दोन्ही धाडक आहेत, कडक आहेत, त्यामुळे काही डिफरन्स नाही. ओन्ली एका जागेवरती सलमान सर आहेत, एका जागेवरती महेश सर. Actually, even what happens is emotions are same. Emotions are same, moods are same. Correct. You're going to react the same, so it's no different. It's the same thing. Marathi or Hindi, it's like Tasks are also as this. Ma'am, in future can we see you in Big Boss Marathi? You ask colors. I don't know. Okay, so ma'am, लॉकअप भी चल रहा है, किस तरह से फॉलो कर पा रहे हैं? अभी बिग बॉस की पार्टी में लॉकअप का कैसे बोलूं? मुझे अच्छा लग रहा है लॉकअप. बस अभी आप कंट्रोवर्शियल मत पूछो. किस तरह का शो देख पा रहे हो? क्योंकि काफी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है. नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी फेयर है, अच्छा है. हैव यू बीन वाचिंग? not much, little bit here and there. फॉलोइंग इट. मुझे सोशल एक्सपेरिमेंटल शोज बहुत पसंद है. It's मुझे भी बहुत. I mean, it's very interesting for sure. और इधर जो कॉन्टेस्टेंट्स है अभी 1 महीने के बाद उनको एक्चुअली लगने लगा कि वो जेल में, तो वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. तो इनसे सोशल एक्सपेरिमेंट वेरी सक्सेसफुल. तो ये आपका पर्सनल फेवरेट लॉकअप की मुझे पहले वो मुनावर पसंद था, लेकिन अभी मुझे लगता है पायल बहुत अच्छा था. हाल ही में जीशान की इविक्शन हुई था. अच्छा, अभी इसके बारे में नहीं पूछते बिग बॉस का नया सीजन भी आएगा, फिर से बिग बॉस का नया सीजन भी आएगा, फिर से आपको देख पाएंगे बिग बॉस का नया. अब तो मैं ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता होता कि कल क्या करना. तो अभी नेक्स्ट बिग बॉस सीजन में जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन एक बात है कि अगर जाऊँगी तो पहले वाली कैश आप नहीं देखोगे जो थोड़ी सी सहमी हुई थी और थोड़ी क्लासी थी. अभी थोड़ा सा अलग ही नेचर है जो फर्स्ट सीजन में. थैंक यू. और बहुत ही मज़ा आया.
हम चारों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और ये सीज़न 3 जो था वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हम सब की दोस्ती जो थी वो बहुत यूनिक थी और इसलिए सीज़न 3 इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ। सर आप क्या कहना चाहोगे बिग बॉस कितना वक्त के नाम है, किस तरह की फीलिंग होती है और दोस्तों से जब मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती है सर ऐसी पार्टियों में मिलते हैं? वैसे तो ये मेरी पहली पार्टी है, मैं ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शूट करके आया कि मुझे करना है, आज सबको मिलना है, क्योंकि जैसे सीज़न 3 में 17 पावरफुल पीपल थे, वैसे सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों सीज़न के सब लोग आने वाले हैं, सब बिग बॉस के पावरफुल पीपल, तो उनके साथ मिलना था, उनके साथ बातचीत करनी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बिग बॉस सीज़न का एक पार्ट था और एक विनर बन गया एंड मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आपको चांस मिला, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मली बिग बॉस की कंटेस्टेंट हो गए, मराठी कंटेस्टेंट हो गए, विनर हो गए, बिग बॉस हिंदी में जरूर जाते हैं। अगर आपको चांस मिला तो क्या आप जाओगे सब? मैं हमेशा बोलतो, मराठीत बोलतो की माझ्या प्रेक्षक मायबापांना जे हवं आहे ते मला करायचं आहे। मतलब मेरे प्रेक्षकों को, जो मेरे फैंस हैं, उनको जो चाहिए वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और अगर उनकी इजाज़त है, उनको लगता है कि मैं उधर जा सकता हूँ तो यस मैं जाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा जाने का। सर हाउ डू यू सी सलमान सर एज अ होस्ट? क्या आपको कभी बड़े स्क्रीन पे आप सलमान सर को अंदर से देख सकते हो? क्या हम आपको देख सकते हो अंदर रूम में आप सलमान सर को देखते हो? सलमान सर का मतलब एज अ होस्ट मैं जज करने वाला मतलब कौन होता हूँ क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली इन अदरवाइज ऑल्सो एंड बिग बॉस एज अ होस्ट ऑल्सो बिकॉज मराठी शो जो है वो महेश सर होस्ट करते हैं और उतना ही पावरफुली करते हैं जितना सलमान सर करते हैं। सो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है और इस सीज़न में तो वो आने वाले थे हमको मिलने के लिए शायद, लेकिन मिलनदार में कुछ गड़बड़ होगी इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए हम उनको फेस टू फेस देख नहीं पाए, लेकिन स्क्रीन पे क्योंकि देखा और इन्होंने आई एम लकी फॉर दैट कि इन्होंने इस टाइम सलमान जी ने मेरा नाम लिया था कि जब नॉमिनेशन का टास्क था उसमें सबसे मेरा सेफ होने वाला नाम मेरा था और वो सलमान सर ने खुद लिया था। तो उसके लिए आई एम फीलिंग लकी और ही इज अ लेजेंड मैन। क्या कुछ कहना चाहोगे आज की शाम की बात करें? जी आज की शाम की बात करें, कितने ज़्यादा आज की एक्चुअली शाम ही कुछ अलग है। थिंग इज़ कि आप जब टीवी पे देखते हो तो बिग बॉस आपको सिर्फ 17 लोग देखते हैं, लेकिन अभी आपको 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे दिखेंगे। सो दिस इज़ अ थिंग कि आप इट्स इज़ अ फैमिली, बिग बॉस इज़ अ फैमिली। जब फैमिली का रीयूनियन होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। सो आई एम जस्ट हैविंग अ फन एंड मीटिंग एवरीवन एंड हैविंग अ चैट विद देम। सर दोस्तों से मिलते, विनर से मिलते तो पहली क्या बातें होती है विनर से? यार मैं सच कहूँ तो मैं इसको विनर की तरह देखता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा दोस्त है पहले, तो विनर हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक दोस्त ही जो हमारा दोस्त वहाँ बना वो विनर हो गया। थोड़ा बैलेंस करें ना फ्रेंड्स। Ma'am, what do you want to say? All the winners are here, Yes. all the players are here. So what do you want to say? Oh, they've been. This season was really very different. As every season has been different, this was really exciting. This I think one of the seasons which had very high TRPs, and these guys made it. I think this is one of my favorite teams. I mean, groups पढ़ते हैं यहाँ पे, which is very obvious. But this is my favorite group that is here today, and I'm very happy that they are here. Thank you so much. Thank you. शाम तो धमाल कर ही जाना है बिकॉज बहुत टाइम के बाद इतने लोग सारे सेलिब्रिटीज़ बिग बॉस के साथ में, बिकॉज थर्ड का तो मैं गई नहीं थी और मैंने देखे लोगों को, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे वेरी फन लविंग एंड डांसिंग। सो आई एम श्योर कि बहुत सारा मस्ती और डांसिंग होने वाला है। और स्मिता की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है बिकॉज हमने लास्ट टाइम किया था 2019 में, राइट? या सो दैट वॉज द परफेक्ट पार्टी आई हैड। आई वॉज वेरी हाई बट आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम। अच्छी जर्नी थी आपकी बिग बॉस की, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? You carry on. Okay, I have lot of memories. I think Shiv is very important for me. I think Smita, then रेशमा ताई भी आई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट, बिकॉज एक टाइम आ गया था कि जहाँ पे मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई थी। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, लाइक दिस ऑल मेमोरी, आई थिंक एक भी मेमोरी मैं भूल नहीं सकती हूँ बिग बॉस के बारे में। एंड इट मेक्स मी, आई डोंट नो, मैं अभी भी गुज़बॉम्स आ रहे हैं और इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ। बिग बॉस की मराठी की जर्नी जिस तरह से लोगों ने देखी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और फिर लोगों की डिमांड है कि आप हिंदी बिग बॉस में काफ़ी सालों से चर्चा
ऑब्वियसली बीइंग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मैंने अब मेरी अपग्रेडिंग कैसी है, मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ। और ये इंडस्ट्री में जिसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है, मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना। और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ, कैसे बातें करती हूँ और अपनी लाइफ में, बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ। तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है, बिकॉज आई लव टू बी लाइक दैट। सो हाँ, अगर आया तो ऑब्वियसली आई विल बी इन फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है, तो दे विल नॉट टेक द सेम आर्टिस्ट, आई डोंट नो। लॉकअप की मैं चर्चा करूँ, लॉकअप तो सबको पता है, लॉकअप एक शो भी है, यू एन ऑल्सो देयर इन ए रियल लॉकअप। सो हम आपको जो रियलिटी शो का लॉकअप है उसमें कब देख पाएंगे? तो आपको ये पता है मैं लॉकअप में थी। ओके, सो आई डोंट केयर, आई वॉज इन अ लॉकअप और एवर, वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं हिला सकता। सो और जो लॉकअप चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है, जो कि मैं भी थी तब मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मिले, बहुत ड्रामेदार बन चुका था। सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप जो इसका लॉकअप है, मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है एंड आई एम लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव हेड जो चीज़ें कर रहा है, उसको लिटरली फन पे भी ले रहा है, क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन, यू कैन डांस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। So I have also done few things in my real lockup, so I know कि what is Munawar doing is doing the best. I don't know, my best wishes only to Munawar. So when you were so there were so many fans who stood by you, supported you. उन सारे fans को क्या कुछ कहना चाहिए? That is no words will not explain that. That's just this. It's my eyes. You will understand. कि I'm giving my truth and my deepest feeling to all my fans, because I am standing right back with you. It's only because of you. Would you like to clarify things? My actions, I have already mentioned, action will talk, words will not. Okay, so आने वाले समय में क्या कुछ प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहोगे? I don't want to share right now. There is lot of coming, but you will see me soon. 3 का ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो फाइनली आज वो पार्टी हो रही है। मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूज़िक लगा के डांस कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूँगी इतने दिनों बाद। आते ही मुझे मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे। हालांकि बीच बीच में मैं उन सब से मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं है कई सालों से। ऑफकोर्स मिलते जुलते हैं, बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता। एंड थैंक्स टू स्मिता कि बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू कैच इट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन। मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना, एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी। कोई ऐसी मेमोरी, एक मेमोरी हो तो बताऊँ? ये तो मेमोरीज़ का मतलब पूरा अफसाना है, और इस अफसाने का अगर एक किस्सा भी अगर बयां करने जाओ तो दूसरे किस्से के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। हमारी पूरी जर्नी ही इतनी शानदार रही है सबकी, फिर वो चाहे मेरे सीज़न मराठी सीज़न की हो, बिग बॉस मराठी सीज़न 1 या बिग बॉस सीज़न 12 जिसमें मैं थी। और देखिए ना कैसा ये एक कॉम्बिनेशन है कि मेरे मराठी सीज़न के जो दोस्त थे, मैं और मेरे दूसरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मेरे मराठी सीज़न के और हिंदी सीज़न के फ्रेंड्स का ही एक ग्रुप बन गया, और देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन अस। जैसे श्रीशंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वैसे ही अब वो स्मिता का भी बहुत अच्छा दोस्त है, और जसलीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो सीज़न 12 में मेरे साथ थी, वो अब स्मिता की भी दोस्त है, रोशनी। सो मेरे ये दोनों सीज़न के लोग एक साथ इकट्ठा इस पार्टी में जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। मतलब जो भी हम कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस में, वो जर्नी हम जी चुके हैं, हम सबके लिए बिग बॉस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो स्पेशल इस वजह से है कि उसमें जो भी लोग थे हमसे जुड़े हुए,
फिर चाहे वो कंटेस्टेंट हो या हमारे कास्ट एंड क्रू हो जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे थे वो लोग हो, वो सारे ही इस जर्नी का हिस्सा है और हमारी सारी यादों का हिस्सा है। सो वी आर, आई कैन से कि हमारा एक दिल से कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, एंड वो कनेक्शन हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक I see it well, just come here. So I think I'm waiting for the party to get started. But I think the concept is Bahana. But I think the concept is amazing. And thanks to Smita for bringing all of us together. And I know कि 2 साल से हम लोग पैंडेमिक की वजह से मिल नहीं पाए, रियूनियन हो नहीं पाया. So I think this was a very needed reunion. I'm looking forward to it. बहुत गाला टाइम होने वाला है, I'm sure. बिग बॉस की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? Actually मेरे सीजन के लाइक हिंदी बिग बॉस के सिर्फ मेगा जी आया, so I am missing every one of them. I think Saurabh is going to come, I heard so. But yeah, I'm very close to Shiv, Srishant's wife, so I'm missing them more. And बिग बॉस में तो मेरा जर्नी बहुत शॉर्ट रहा, उसके बाद हमारे इतने सारे मेमोरीज बन गए तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले समय में would you like to share something about? अभी आया दिल रुसिया, आपने देखा दिल रुसिया? तो जो आपने नहीं देखा अभी तक 1 करोड़ व्यूज़ हो गए. आई एम सो ओवरवेल्म्ड. प्लीज शो मोर लव टू इट. एंड बहुत जल्दी बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले, बट आई एम नॉट अलाउड टू से नाउ. आई हैव टू वेट. Okay, so your journey was very small. Yes. So if you get a chance to go inside the house one more time, so will you go? Why not? I'm grateful to Big Boss. Like Big Boss की वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, आप सबके साथ बात कर पाती हूँ. तो अगर वापस थोड़े दिनों के लिए जाना होगा तो मैं जाऊँगी. पूरे टाइम के लिए I don't think so I can stay. You know, I'm someone who is not very controversial. I'm someone who doesn't like to fight and all ज़्यादा. तो वो घर में ना माहौल ऐसे बन जाते हैं कि मैं तो पागल हो जाऊँगी, है ना. तो थोड़े टाइम के लिए जाना होगा. I would love to. Why not? Welcome. Bye bye. आज आमच्या स्मिताची बिग बॉसची पार्टी आणि स्मिता आमच्या बिग बॉस नंबर 1ला पार्टी दिली. 2 झाल्यावर 2 पहिली आणि दुसऱ्याला पार्टी दिली. आज पहिली, दुसरी आणि तिसरी अशी मिळून 3 बिग बॉस सीझनची 3 सीझनची आज मस्त पार्टी आहे. एन्जॉय करणार आहोत, धमाल करणार आहोत. मैडम एक सवाल है. बोलो मेरी आवाज़ ऊंची है. पवित्र रिश्ता 2 आया. उसका क्या संबंध है? नहीं, आप कमाल की परफॉर्मेंस है. इस तरह से आप पवित्र रिश्ता 2 को देखते हैं. 2 को देखने का क्या, पवित्र रिश्ता मेरे दिल के करीब थी. सीरियल थी, अच्छी हुई थी, सबको अच्छी लगी. पूरे संसार को, नॉट ओनली मुंबई, पूरी दुनिया को अच्छी लगी थी. अभी जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा क्या आया, वेब सीरीज आई. मैंने पूरी देखी नहीं, मैंने काम किया है, लेकिन मुझे जो मज़ा आया था सीरियल करने में उतना मज़ा इधर नहीं आया. क्या आपने किसी को मिस किया उस सीजन में? आप बार मत पूछो, फिर मेरा इधर कुछ होता है. आपको मालूम है, फिर क्यों पूछते हो. अजय भी नहीं थे, सुशांत भी, बुरा लगा. चलो, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. 3 सीज़न के लोग एक साथ आ रहे हैं. एक्चुअली आप सोच सकते हो कि एक बिग बॉस घर में 15 लोग कितनी मस्ती करती है. आज इंटू 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. बिग बॉसची काही मेमरी, खूप साऱ्या मेमरीज आहेत. अख्खा बिग बॉस मेमरेबल आहे. आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला आणि मी स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते. इनफॅक्ट मगासपासून मी तिला शोधते, कुठे मला सापडत नाही ती. तर खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट अ पॉसिबल, आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते. खूप छान वाटतंय. मुझे एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है.
ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है, और हिंदी में वो थोड़ा कम है लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है। As now the kind of response Marathi Big Boss is getting, Hindi Big Boss was always on the top. Now the Marathi Big Boss is also making tough competition. Yes. What message would you like to give to the fans? फैंस you want to say? नहीं बोल दो। फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है, और मराठी बिग बॉस सच में म्हणजे तो एवढा वरती चालला आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं आहे. आमचे खूप सारे वीकेंडचे असे होते एपिसोड ज्यांनी हिंदीला पण बीट केलं आहे. तर ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे, आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. नेक्स्ट सीजन मराठी बिग बॉस में आपको देख पाएंगे आप? हां, मला तर जायला खरंच आवडेल, कारण कसं आहे आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो. जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन, जसं ही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलोय म्हणून खेळायचं असं नाही होते. प्रॉपर आपण जसे आहोत तसेच प्रेझेंट होतं. सच्चेपणा खरेपणा असतो मराठी ऑडियन्सला, तेच पावतं. आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारं आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं, तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि चौथ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे, कारण जे धावून गेलेलं आहे ना काही काही गोष्टी त्या तिथे जाऊन धमाल करायची आहे. ते आवडेल आम्हाला. मैं भाग रही हूँ, मुझे चलेगा. मैं भाग रही हूँ. वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा, और क्या होगा. अच्छा, मुझे चलेगा. मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ. अगर वो बना रहे हैं तो अभी अनाउंस किया है, तो उनको ऑल द बेस्ट. और आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे तो आप ज़रूर बन सकते हो. हाँ, मैं इस तरह से हिस्सा बनना चाहूँगी कि उनको मैं मिलूँगी और पहले ये पूछूँगी कि आपके मूवी का नाम क्या है. तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तभी तो देखेंगे ना हमारे ऑडियंस जो है. तो